किस जगह पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? आपका तो मुल्क ही एक आर्टिस्ट की वजह से बना है। आप कैसे अपने आर्ट को डिफाई कर सकते हैं? मिस एक डिफिकल्ट सवाल, पाकिस्तान में आप आर्ट का फ्यूचर क्या देखती हैं? Art is not just a painting on the wall. Yes. Art is literature, it's dance, it's media, it's filmmaking. People are recognizing art as a potential business as well. ठीक. But in the end, art is not something that can be suppressed. Okay. You cannot end it. देखिए जी, पाकिस्तान में जो पार्टिसिपेशन है फॉर फीमेल्स इन द वर्क फोर्स, इट इज़ अबिस्मली लो. आई मीन हमारी इकोनॉमी को इस बात का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बिकॉज women do not work. But at least we are one of those countries that elected a female president. हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम perfect beings हैं. We are not prophets. We are हम human अशरफुल beings. मखलूक़ात हैं जी. That does not make us moral or ठीक, perfect. okay. रहीम यार खान एक ऐसी एनवायरनमेंट है जहाँ पे लोग अभी तक तावीज़, धागो, जादू इस किस्म की चीज़ों में ना सिर्फ बिलीव करते हैं बल्कि एक्ट भी करते हैं. उस एनवायरनमेंट में क्या ज़िंदगी मुश्किल नहीं? The thing is, the kind of environment can exist at any place. क्या आपका आर्ट सच दिखाता है या क्या पाकिस्तान का आर्ट सच दिखाता है? अगर मैं एक ब्रश की स्ट्रोक भी लगा रही हूँ, Right. if I'm angry, if I'm anxious, it's gonna show in my stroke. एक जोकर जो कि दुनिया को हंसा रहा है, maybe his or her heart is broken. Yes, I always found comedy a little sad. ये मुझे बताइए खूबसूरती क्या चीज़ है और आप किसे खूबसूरत समझती हैं? For me, I see beauty in survival. हमारे अपने लोग हमें वैलिडेट नहीं करते. मेरा एक मौलवी दोस्त मुझे कहते रहता है कि आर्ट शार्ट तो वैसे ही इस्लाम में हराम है. That's not possible. वो क्यों? बात कर रहे हैं कि आर्ट हराम है, हाँ. तो it's not possible because I would see it as jihad as well. जिंदगी आपको मिली जी, जिंदगी पाकिस्तान में, वो भी एज अ फीमेल आर्टिस्ट. इस जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या था? आपने ज़िंदगी कहाँ गुजारी एज अ पर्सन, जहाँ पे आपने अपने आप को ये जस्टिफिकेशन नहीं दी कि अच्छा ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, या ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक माँ हूँ. आपने अपने लिए ज़िंदगी कहाँ गुजारी? आपको पहली बार ये कब और कैसे पता लगा कि इस मुल्क में औरतों के लिए रूल्स और मर्दों के लिए रूल्स डिफरेंट हैं? Very early on. Today we have with us Miss Huria Khan, also known as Huriyatul Bahir. Born in Rahim Yar Khan ji, and you were raised on contradictions. You can call it contradictions, but I would call it experiences. Fantastic जी. इंडस के किनारे आपकी लाइफ स्टार्ट हुई थी. Desert के बीच में, it was desert everywhere. All you can see is sand. You got a full scholarship to NCA. You graduated with distinction. You started off as a miniature artist. Miniature is my major. Right. So I studied miniature painting, and I am very much interested in it, and I am very much inspired by it. मगर जी अब तो बात बढ़ चुकी है, गल बढ़ गई है. अब it's not just about how you make a painting. It's not supposed to be exactly like a miniature painting. लेकिन मेरा तरीका, तौर तरीका वही है. मेरे mediums वही हैं. ठीक जी. आप काम करती हैं फंगस, पेपर, नेचुरल हैंडमेड पेपर और फ्लावर्स के साथ. आपके बारे में मुझे आपकी एक फ्रेंड ने कहा था, उन्होंने कहा था जी she makes art that breathes with organic textures and rather unsettling figures. That's actually beautiful because when I think about my art, it's not just about making something beautiful. ठीक. It's about making something as it's supposed to be or as it is. और as you envision it. So basically beauty is more like a subjective concept. ठीक है, आपको कुछ भी खूबसूरत लग सकता है. For me, when I see fungus or when I see a texture that has time in it, जिसके साथ मैंने वक्त गुजारा हुआ है, या जिसने ज़िंदगी को देखा हुआ है, इस तरह के पुराने पेपर को भी मैं यूज़ करती हूँ. ठीक. काफ़ी जगह आपका काम मैं देख चुका हूँ जी. कैनवस गैलरी, ओ आर्ट स्पेस, सतरंगी, Pakistan Pavilion in Dubai. If I understand you correctly, you're a rising artist who's making a name for yourself in the Pakistan art scene. Do you consider me an artist? Of course, yeah, I consider you an artist. That's more than enough. आपको देख के दो शेर याद आ रहे हैं फैज़ के. आप कहें तो आपको सुना दूँ. Sure, of course.
जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। और जी दूसरा क्या वो शेर था, हाँ, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हारने का हौसला है मुझे। That's what love is basically, you know. It's not about something that you give, it's something that you have जी in yourself. मैं कहता हूँ जी क्या बात है फराज साहब की और क्या बात है आपकी, आपने बिल्कुल सही तशरीह की, एब्सोल्युटली राइट। मैंने आपका काम देखा था when I came to your studio, and if I had to say something about it, or if I had to say something about yourself, I would say you're brilliant, bold, and beautifully unsettling. हुरिया खान, देखिए जो नॉर्मली आई कैन स्पीक वेरी वेल, मगर कोई हसीन और खूबसूरत लड़की सामने बैठी हो तो मेरे दिमाग का वैसे फालूदा बन जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि गुफ्तगू कहाँ से शुरू करूँ कि आपकी चाइल्डहुड की जो स्टोरी आपने मुझे बताई थी, अगर उस पर कोई ड्रामा सीरीज बने तो HBO की 4 सीजन की तो सीरीज बनी जाए। तो चले एक कूजे को एक दरिया में बंद करने की कोशिश करते हैं, या दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करते हैं। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? When it comes about my childhood, it was more like I had a lot of experiences. क्या मतलब है आपका एक्सपीरियंसेस? आई मीन रहीमिया खान में क्या एक्सपीरियंस हो सकते हैं बंदे के? इंसान की experience is not about going to a different place or going to a different setting. It can be with a person as well. Like I grew up with my siblings. I have a lot of siblings. Right. So every person, I was able to monitor their lifestyle, their choices, and like, you know, everything that they felt very closely. ठीक है, जब आप बहुत क्लोजली किसी इंसान के साथ वक्त गुजारते हैं, आपको पता होता है वो किस एनवायरनमेंट में ग्रो अप कर रहे हैं, वो किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं और उन डिसीजंस के पीछे रीजनिंग क्या है। मगर बंदा एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट चेंज भी तो होता है ना। आई मीन एक एनवायरनमेंट है जो For हम me, that was moving from Rahimia Khan to Lahore. And when it comes to Lahore, Lahore में I was at a very interesting place. बिल्कुल NCA, क्योंकि NCA में पाकिस्तान की हर कॉर्नर से लोग आते हैं. It's not just पंजाब. मुझे NCA आने से पहले नहीं पता था हुंसा के लोग कैसे होते हैं या कोयटा के लोग कैसे होते हैं या लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं पाकिस्तान के अंदर. मुझे 2-4 लैंग्वेजेस के अलावा तो किसी लैंग्वेज की एग्जिस्टेंस का भी नहीं पता था. बिकॉज यू नो हम लोग तो वैसे भी उर्दू से भी डिनाइल में होते हैं. हाँ जी बिल्कुल, हम तो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं क्योंकि हम अंग्रेज के औलाद हैं सारे. ठीक जी. So for me it was like a lot of exposure in a place and at a time where I was evolving and I was growing. आपकी एज भी वो होती है, ठीक है, you are in your 20s and like you know your brain is starting to make sense of thing. आपकी डेवलपमेंट इस तरह से हो रही होती है and at that point if you are in an environment that can help you with exposure, with art and everything, so it's like a blessing. I don't think I would have survived in another institute if it मुझे ये wasn't for बताया गया है NCA. जी कि रहीम यार खान एक ऐसी एनवायरनमेंट है जहाँ पे लोग अभी तक तावीज़, धागो, जादू इस किस्म की चीज़ों में ना सिर्फ बिलीव करते हैं बल्कि एक्ट भी करते हैं. मोर टू द पॉइंट कि वहाँ पे जो असूल और वहाँ पे जो सिस्टम चल रहे हैं ये प्री पार्टीशन, प्री ब्रिटिश एम्पायर, वो जो मेरी माँ का करती थी हिंदुओं के ज़माने की कहानी है, वो अभी तक रूल्स चल रहे हैं वहाँ पे. उस एनवायरनमेंट में क्या ज़िंदगी मुश्किल नहीं? The thing is, the kind of environment can exist at any place. ठीक है, अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे कल्ट्स हैं बिल्कुल है जो कि बहुत ज़्यादा फैनेटिक भी हो जाते हैं, वो Right. डिसीजंस अपने उस तरह से लेते हैं. इट्स मोर अबाउट पीपल कि द थिंग इज एवरीवन नीड्स समवन टू टॉक टू. जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए थेरेपिस्ट है. हमें पता है कि अच्छा दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल इशू ठीक है. और दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज समथिंग हैपेंड इन द पास्ट. Right. तो हमारे लिए तो थेरेपिस्ट है, Right. बट अ पर्सन हु इज़ फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड जहाँ पे ठीक. एजुकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ पे इस तरह के आइडियाज़ एग्जिस्ट नहीं करते, Right. दे ऑल्सो नीड समवन टू टॉक टू. Of course. तो पीर फकीर ये थेरेपी उनको देते थे उस समय 6000 साल से देते हैं. कोर्स लाइक यू नो औरतें वहाँ पे जाती हैं. आई हैव बीन टू दोज प्लेसेस. आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन दैट एनवायरनमेंट. तो वहाँ पे बस औरतें जाती हैं और वो अपने मसले बताती हैं. दे जस्ट लेट इट ऑल आउट. Okay. क्योंकि
पीर जी मैं की करा ठीक है जी धाड़े मार के रो रहे हैं हाँ वो बस कथारसिस हो रहा है कथारसिस हो रहा है। आप अपने दिल की बात किसी को बोल रहे हैं। देखिए आपके माइंड में दिल में कोई बात होती है, जब तक वो लफ्ज़ों में नहीं आती उसकी इंटेंसिटी फ़र्क होती है। राइट कुछ चीज़ें जब हम बोल देते हैं, किसी से डिस्कस कर लेते हैं, दे फील लेस हैवियर। राइट सो इन अ वे दैट वर्क्स। हाउ डू पीर मीन इट फकीर वर्क्स वाला जो हाँ सिस्टम होता है, इट वर्क्स, इट इट वर्क्स हेल्प्स। चलता है हाँ, या it is दौड़ता है helpful. It is helpful for a lot of people because in certain way it gives hope. You're And all human beings need is a hope to survive. Growing up, I wasn't aware of art. Okay. I was interested in it in a manner. I did not have any other activities. क्या मतलब मेरी ज़िंदगी में बाहर जाना, खेलना, इंटरैक्ट करना बच्चों के साथ, इस तरह की बहुत ज़्यादा लेट्स जस्ट से आई वाज़न्ट equipped with it. So all of the recreation that I could have for myself was when I used to draw. That was my only recreation. Other than that, it was either studying or like, you know, just living. तो अगर मुझे अपने आप को entertain करना होता था, that was through whatever I had. And at that point, the only possible materials that you find around you is your pencil and the paper that you have. आप वहाँ पे थी जहाँ पे इंटरनेट टैबलेट्स कंप्यूटर्स Computers तो अभी लेट आए हैं ना, ठीक but है। like we had computers in Right. our house. Right. Internet थोड़ा मेरे teenagers में आया, but before that I used to either draw or use softwares. मुझे softwares explore करना पसंद था. ओके I wasn't into playing games Right. or sports or anything, but you know, playgrounds नहीं है रहीमिया खान में है, but like you know, the environment isn't. कंड्यूसिव Yeah, in a way, it's not as comfortable कि आप बाहर जाके बच्चे खेल रहे हैं, stuff like that. ठीक लीजिए मैं बस सवाल आपसे क्या आपका आर्ट सच दिखाता है या क्या पाकिस्तान का आर्ट सच दिखाता है Art cannot be a lie. There is a difference between art and crafts. ओके I would say when something becomes a formula that other people can also adapt is the definition of a craft. ओके Art is something that is always evolving because it's coming from an artist. एक इंसान का दिमाग एक साल में एक दिन में भी बदल सकता है. People are, you know, I would call artists curious people. ठीक है, वो किसी चीज़ के साथ वक्त गुजारते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं. And over time, that understanding develops. ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि वो अंडरस्टैंडिंग कहीं पे स्टॉप हो जाए. ओके I won't call it art if it stops. You won't call it art if it stops. Like art हरकत पे रहना चाहिए. Art is, you know, an artist is a sort of a person जो कि हमेशा curious रहेगा. वो अपनी एक painting बनाता है. Like when I am drawing, I never know how my painting is going to look like in the end. Okay. It's a whole process. At first, I let the nature evolve. ठीक. जहाँ पे मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर रही. It's being controlled by nature in itself. ठीक. फंगस ग्रो कर रही है, मैं मेटल को ऑक्सीडाइज कर रही हूँ, उसके डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, एंड देन आई वर्क अराउंड इट. सो फॉर मी इट्स लाइक यू नो आई वर्क अराउंड इट अकॉर्डिंग टू व्हाट माय सरफेस इज डिमांडिंग मी. ठीक है. तो मैं उसके अराउंड काम करती हूँ एंड आई एम ऑलवेज क्यूरियस कि हाउ इट्स गोना लुक लाइक इन द एंड. मैं अगेन आपसे दोबारा पूछूंगा क्या आर्ट सच बोलता है क्या पाकिस्तान का आर्ट सच बोलता है इंसान जो फील कर रहा होता है ना, इफ़ आई एम फीलिंग समथिंग इट्स गोना शो इन माई एक्शंस. अगर मैं एक ब्रश की स्ट्रोक भी लगा रही हूँ, इफ़ आई एम एंग्री, इफ़ आई एम एंक्शियस, इट्स गोना शो इन माई स्ट्रोक.
It is. अगर मैं एक लाइन लगा रही हूँ, अगर मुझे उस टाइम पे आई एम एंग्री और आई एम एंक्शियस, तो मेरी वो लाइन सीधी नहीं लगेगी. आई कैन ओनली ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन आई एम रिलैक्स्ड. ठीक. So, in a way, when an artist makes something, it cannot be a lie because they are creating something that is coming from within. I'll give you a counterpoint. एक जोकर जो कि दुनिया को हंसा रहा है, maybe his or her heart is broken. Yes, I always found comedy a little sad because, Huh. if you're into psychology, you would know people distract their sadness with laughter. Like, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको कोई disastrous news बताओ तो they instantly smile. They don't know how to react. Right. So it's like, it's more like an escape way to accept that, okay, this is sad. This is a sad reality. Like, there are jokes on racism. There are jokes on a lot of things. Right. Which are not okay to be joked about. ठीक है. ठीक है. Right. और लेकिन उसको इतना desensitize कर देते हैं just to feel like, you're part of it and you have experienced it. I agree with you on that point. There are certain things you can joke about, but there are certain things you can't joke about on TV. There are certain things you can't joke about in media. But we always joke about something. देखिए प्राइवेट लाइफ के अंदर आप दो बंदे क्या बात करते हैं क्या बात नहीं करते, दैट्स एब्सोल्युटली कोई मसला ही नहीं है. जिसने जो कहना है कह दे. अगर मुझे उसकी बात पसंद नहीं है मुझसे मिलूंगा नहीं, हम यही कर सकते हैं ना, आप और क्या करेंगे. ये मुझे बताइए खूबसूरती क्या चीज़ है और आप कैसे खूबसूरत समझती हैं? For me, I see beauty in survival. Survival. मैंने अपना काम स्टार्ट किया था. I left some flowers in my journal. Right. कोरोना का टाइम था. I used to make colors out of flowers. Right. जो उस टाइम पे अचानक से हमें मूव करना पड़ा हॉस्टल से अपने जहाँ पे भी रेजिडेंस थी. So I had those flowers and I could not extract the color out of them, so I placed them in my journal. ठीक. And I was expecting कि अच्छा कुछ अर्से बाद जब मैं उसको खोलूँगी तो they would be like dried flowers. जैसे आप किताब में गुलाब का फूल रख देते हैं तो वो ड्राई हो जाता है. So that was my expectation of it. अब के बिछड़े तो कभी ठीक सही है. So when I opened my journal after a few weeks, those flowers weren't dead. They became part of the paper. They let go of their colors. They let go of their scent. They became part of the paper and there was fungus growing out of it. They transformed. They turned into something else that wanted to survive. And it was like something, when you are suffocating in an environment or when you're feeling anxious, like, it's a feeling of suffocation. But it also reminds you that you are alive. You're not dead yet. So there is a chance you can survive. So I found beauty in that survival. So that's beauty for me. क्या कह सकते हैं जी? पतली कमर खुशअंदाज नाजुक बदन हसीन. सच है कि हम कुछ भी नहीं तेरे सामने. ये मुझे बताइए जी कि क्या आर्ट इन पाकिस्तान कैन इट चेंज सम सोशल नॉर्म्स? Art is always revolutionary. Okay. ठीक है. It's for the people to understand how important art is. Right. Let's suppose कोई भी country है, वो अपनी power कैसे show करवाती है? How do they introduce themselves to the world? USA number one. वो तो यही कहते रहते जी with the biggest military power, with the biggest economic power. But they show it through art. अच्छा. ठीक है. Everyone shows it through art. आपने बड़ी buildings बना दी हैं. आपने दिखाया कि हमारा infrastructure इतना huge है. सही. ठीक है. किसने उन बड़ी buildings को बनाने में help किया? It was the artist that came up with the idea to build something like that. ठीक है. आपने pyramids बनाए थे. They were supposed to show power. ठीक है. पूरी दुनिया में like for 5,000 years they were the dominant authority and they showed it through their art. ठीक. तो art एक वो चीज़ है जो represent करती है आपके
पावर को. So if Pakistan, for Pakistan to, I would say, if Pakistan wants to be known, ठीक. so they are supposed to accept that art has a role in it. Right. And they are supposed to support artists. They are supposed to accept their own artist. हमें बाहर से जाके वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं चाहिए. हमें अपने लोगों से वैलिडेशन की ज़रूरत है. हमारे अपने लोग हमें वैलिडेट नहीं करते. मेरा एक मौलवी दोस्त मुझे कहते रहता है कि आर्ट शार्ट तो वैसे ही इस्लाम में हराम है. That's not possible. वो क्यों? आप literature is basically elusive. Traditionally, literature has been very elusive. ठीक. It's like a modern concept कि जहाँ पे कहते हैं कि जो जैसे है उसको उसी तरह से बोल दो. But you know, religiously if you're talking about it, आप कुरान की बात कर रहे हैं, it's poetry. It has different meaning. It's your past, it's your present and the future as well. So that means it's elusive. ठीक है? तो जब आप बात कर रहे हैं कि आर्ट हराम है, हाँ. तो it's not possible because I would see it as jihad as well. You would say Let's- art is jihad. Yes, because अगर आप जिहाद की डिफरेंट लेवल्स की बात करते हैं तो जिहाद ठीक. नफ्स क्या है? बिल्कुल. ठीक. इट्स रिकग्नाइजिंग अ कॉन्फ्लिक्ट कि आपको कुछ बुरा लग रहा है, आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं. ठीक. ठीक है. ठीक. व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? यू स्पीक अबाउट इट. Right. ठीक है. वी हैव पीपल हु सिंग अबाउट बिल्कुल ठीक. बिल्कुल सही है. प्रॉब्लम्स. बिल्कुल, of course. रेवोल्यूशनरी आपके तराने जो होते हैं, हम हर रोज तराना पढ़ते जी हैं. हमारे हम दोस्त लोग हैं mess में डॉक्टर पढ़ते तैमूर. हैं. वो ठीक है. दे आर सपोज टू रेज आवर मोरल्स. Of course. ठीक है. दैट्स स्पीकिंग. Right. उसके बाद आता है आपका एक्शन. Right. एक्शन इज डूइंग समथिंग विद योर हैंड. Right. द प्रॉब्लम इज जब हम रिलीजन को ले जाते हैं, हम बहुत उसको एक्सट्रीम समझ लेते हैं. ठीक है. हमने इसको एसोसिएट कर दिया वर्ष के साथ. हमने इसको एसोसिएट कर दिया कि अच्छा हाँ जंगें लड़ लो, जिहाद की बात हो रही है तो जिहाद मीन्स वर्स. नो, it's something that's inside you. Right. You feel something wrong. You want to speak about it and you want to take an action about it. And if an artist is making something, is drawing something in order to, let's say, I made art, one of my paintings was about labor. Right. जिसमें मैंने गधे बनाए थे और डीमंस बनाए थे. एंड द आइडिया वाज कि हम कैसे लेबर को गधों की तरह ट्रीट करते हैं. सो इजंट दैट मी टेकिंग एन एक्शन अराउंड समथिंग दैट आई फील दैट्स रॉन्ग? You're So I would absolutely right. call it the same way. You're right. Like, you know, आप मार्क्सिस्ट की बात करते हैं, अगर मार्क्सिस्ट कहता है conflict leads to progress, he's not talking about a fist fight. He's talking about, like, you know, recognizing the problem. And, you know, when first you recognize a problem and then you solve it. अगर आप प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी ना आपके माइंड में, तो आप उसकी सोल्यूशन की तरफ देखेंगे भी नहीं. बात आपने सही की जी, मगर मार्क्सिस्ट के साथ तो कैपिटल इकोनॉमी को बड़े एतराज़ात होते हैं. People talk about something. Let's say आज अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, मैं आज के वक्त के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ. कुछ मेरी ऐसी बातें होंगी जो फ्यूचर में भी शायद दे आर यूजफुल, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जो फ्यूचर के लिए दे आर सपोज टू बी डिफरेंट. क्या वो हमारे बुजुर्ग ने बात की थी कि ना तुम लोग मेरे लोग हो, ना ये ज़माना मेरा ज़माना है, मेरे लोग आगे आएंगे. तफसीर के बारे में भी यही बात करते हैं कि तफसीर करने वाले लोग आते रहेंगे. ठीक है. सो यू नो इट्स अ प्रोग्रेस. जैसे जैसे हमें साइंस के बारे में पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होती जाती हैं. Right. सो फॉर मी इट्स लाइक, यू नो, यू आर सपोज टू कीप अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. मिस एक डिफिकल्ट सवाल, पाकिस्तान में आप आर्ट का फ्यूचर क्या देखती हैं? पाकिस्तान में आर्ट का फ्यूचर, आई वुड से
it might sound a little cynical, but at this point, people are recognizing art as a potential business as well. ठीक. But in the end, art is not something that can be suppressed. Okay. You cannot end it. बिल्कुल ठीक, सही. आप जितनी ज़्यादा उसको मिजरी देंगे वो उतनी ज़्यादा बाहर निकल के आएगी. Okay, there's great art comes from misery. इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो एक आर्ट की मूवमेंट आ गई, ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसके ऊपर आर्ट की मूवमेंट्स आ गई. आर्ट Right. रेवोल्यूशन लेके आ सकती है. आप जितना उसको टफ टाइम देंगे उतनी बड़ी रेवोल्यूशन लेके As आएगी. an artist, are you afraid of AI? नो, व्हाई वुड आई बी अफ्रेड ऑफ Because AI एक revolution ला रहा है जो कि मुझे बताया जा रहा है कि किसी artist को जरूरत नहीं है कि हम जो चाहेंगे बन. I was once watching something. It was a show, basically, and the idea was that there is this person who develops a robot, ठीक. ठीक है, who is a perfect being. ठीक. ठीक है, उसने उसको इतना ज़्यादा डेटा फीड कर दिया that robot can act according to every single need or instinct. Right. Sort of a You know? Pygmalion story. ठीक. Yeah. So, but in the end, so that person makes that robot in her replica. It looks like her and like, you know. But then she mentions that you can never be me हाँ. because you can never be flawed like me. Human beings are flawed. ठीक. हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम perfect beings हैं. We are not prophets. We are हम human अशरफुल beings. मखलूकात हैं जी. That does not make us moral Perfect. or ठीक, perfect. We have the capacity, if we have the capacity to feel happiness, we have the capacity to feel sadness. We have the capacity to feel anger. We have the capacity to feel envious, jealous. So human beings are not just one emotion. Of course, अगर अच्छा है They- तो अशरफुल मखलूकात है, अगर बुरा है तो असफल साफिलीन. दोनों तरफ उसके स्केल्स बनते हैं. Yes. आप अपने आर्ट को किस स्केल पे देखते हैं? Art go. Art is just art. Like, you know, I would not say that it's perfect or it's too moral. It can be immoral for someone. It can be discomforting for someone. But for me, it's me. I am giving a part of my life to it. Right. I'm the way I live, I have enough space to work. Right. So that means I'm giving myself to it. That's a part of me. चलें जी, थोड़ा सा और ज़रा ज्ञान दीजिएगा हमें. पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए आपके पास क्या मशवरा है? पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए किस जगह पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? और किस जगह पाकिस्तानी सोसाइटी अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है? they need to understand we have amazing literature. We have amazing artists. पाकिस्तान एक पूरी कंट्री है, ठीक है? We exist because of an idea that came from an artist. Right. आपका तो मुल्क ही एक आर्टिस्ट की वजह से बना है. आप कैसे अपने आर्ट को डिफाई कर सकते हैं? यानी कि आप पाकिस्तान का आइडिया इल्लामा इकबाल and you're calling Iqbal an artist. Of course. Right. Literature is part of art. Absolutely, it's part Art of it. is not just a painting on the wall. Of course. Art is literature, it's dance, it's media, it's filmmaking. Right, of course. It's a lot of things. 9 muses तो Greeks ने identify कर लिए थे. You're absolutely right. I mean, Iqbal was an artist. He was. Does Iqbal inspire you? Of course. How so? So we were talking about fungus and the idea of death ठीक. in my art. Right. So मौत क्या है? तिरमिज़ी जो हदीस की किताब है उसमें ज़िक्र है कि मौत का ज़िक्र करो अच्छे लफ्ज़ों में. एक गैदरिंग में बैठो तो मौत का ज़िक्र करो. Initially that thought gave me an uncomfort. You know, it's an uncomfortable thought. But then in my understanding I realized it's so beautiful.
you know, जब एक इंसान मौत की बात करता है ना, for me it means acceptance. Acceptance of death? Acceptance. Okay. When, like I said, art has been elusive, literature has been elusive. Shams Tabrizi ने अगर कहा है कि there is a death before your actual death and there is a rebirth, so death did not mean ending things. It meant accepting. When a person accepts there's death, they accept that they are a human being. They are not immortal. They are mortal beings. ठीक. वो अपने आप को इंसान समझते हैं, वो अपने आप को खुदा नहीं समझते. फिर आपका गॉड कॉम्प्लेक्स ख़त्म होता है. आपके ख्याल में पाकिस्तान में ये मसला है गॉड कॉम्प्लेक्स? लाइक यू नो, हमारे तो अराउंड ये बहुत ज़्यादा कहावत है ना, कोई डिलूजनल इंसान होता है तो हम उसको कहते हैं इसको मरना भूला हुआ है. व्हाट डज दैट मीन? उसको मरना भूला हुआ है. दैट पर्सन डज नॉट बिलीव दैट ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग और शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग. So that means death in our culture means acceptance. When you accept what you are, then only then you can live a life which you feel a blessing of God कि खुदा ने आपको मोहब्बत में बनाया है. ठीक है. और आप आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो आपको तोहफा देता है, तो आप उस तोहफे को बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, आप उसका ख्याल करते हैं. जिंदगी आपको मिली जी, जिंदगी पाकिस्तान में, वो भी एज अ फीमेल आर्टिस्ट. इस जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या था? इस जिंदगी में सबसे मुश्किल काम, I was going through this interview by an activist, Nina Simone. She is a singer, a songwriter, an activist. And she was saying, I wish I had lived half of my life as a free person. She wasn't a slave. But then there comes the idea of freedom. Azadi. Freedom is something that comes when a person realizes they have the right to live. They have the right to make choices. क्योंकि औरतें इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं. पहले हम बेटी की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, हम बहन की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, हम माँ की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं. हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स में वी हैव अ प्री कंसीव्ड रोल. ठीक है. एक आइडिया उस रोल का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे माशरे में कि बेटी का रोल ये है, बीवी का रोल ये है. उसमें आपका अपना क्या रोल था? आपने ज़िंदगी कहाँ गुजारी एज अ पर्सन, जहाँ पे आपने अपने आप को ये जस्टिफिकेशन नहीं दी कि अच्छा ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, या ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक माँ हूँ. आपने अपने लिए ज़िंदगी कहाँ गुजारी? देखिए जी, यही कंप्लेन हर मर्द करता है जी कि मैंने अपनी ज़िंदगी औलाद के लिए गुजार दी, मैंने अपनी ज़िंदगी बीवी बच्चों के लिए गुजार दी, मैंने ज़िंदगी ऑफिस में गुजार दी. गुजारनी चाहिए ना, मेरे पास अपने लिए टाइम कहाँ रहा? हाँ, नहीं गुजारनी चाहिए. इंसान को एक ज़िंदगी में एक पॉइंट पे ये चीज़ अंडरस्टैंड, लाइक यू नो, अ person is supposed to understand. That's what Shams Tabrizi is talking about. That's what Iqbal is talking about when they talk about Khudi, or when they talk about death and rebirth. They basically talk about acceptance. कि एक पॉइंट पे आप अपने आप को एक्सेप्ट करें. आपने जो ज़िंदगी गुजारी है, आपके साथ जो भी हुआ, आप उसको एक्सेप्ट करें और फिर आप अगला कोई डिसीजन ले सकते हैं. मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया जी. The time I wasted having fun was never wasted. That's the only time I remember from life. The times, the good times. Yes, like you know. आपको पहली बार ये कब और कैसे पता लगा कि इस मुल्क में औरतों के लिए रूल्स और मर्दों के लिए रूल्स डिफरेंट हैं? Very early on. I grew up in a separated family. Right. So that comes with a lot of, you know, if you are growing up like that and you belong to a city that does not accept the kind of a lifestyle for a woman where she is earning and she is like यानी कि वो लड़की अगर स्लेव से ज़्यादा कुछ है तो ना मसला है. मंटो ने ये कहा है ना, अगर हमारे मुआशरे में हमने सिर्फ तो वाइफों को सेल्फ
maids देखा है, like you know they earn and they have their own Right. lifestyle. Right. तो इस वजह से हम अगर कभी किसी औरत को, अगर वो खुद के लिए सेल्फ अर्न कर रही है या खुद के लिए काम कर रही है, तो हम उसको सिर्फ तवाइफों से एसोसिएट कर देते हैं, हम उसको औरत नहीं समझते. देखिए जी, मैं क्या बताऊँ, मैं एक दफ़ा स्पेन में था, कसाई की दुकान पे एक खूबसूरत स्पेनिश लड़की बड़ा गोश्त बेच रही थी, और उसको देख के मैंने ख्याल किया कि ये लड़की काम तो हलाल कर रही है, मगर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता लड़की हलाल काम करे. आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी हमने सोसाइटी में कैसे फ्लॉ है. इस चीज़ को डिनाई कर दिया, मतलब बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे रिलीजन के अंदर. आप हज़रत खदीजा की बात करें, शी इज़ अ बिजनेस पर्सन. ऑफ कोर्स. तो कैसे हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी औरतें काम ना करें. हज़रत आयशा जंगों पे भी गई हैं. कैसे हमने अपनी औरतों को वॉर्स या वेपन्स के साथ. देखिए जी, पाकिस्तान में जो Associate नहीं पार्टिसिपेशन है फॉर फीमेल्स इन द वर्क फोर्स, इट इज़ अबिस्मली लो. आई मीन हमारी इकोनॉमी को इस बात का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बिकॉज women do not work. But at least we are one of those countries that elected a female president. बहुत सारे मुल्कों में जो आपके बहुत liberated countries हैं, अभी तक उनमें उन्होंने ये चीज़ अलाउ नहीं की है. जी, बेनज़ीर भुट्टो, we had a female prime minister. अमेरिका ने हिलरी क्लिंटन को चांस नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं. Because patriarchy still exists. You can deny it. You can. देखिए जी, यही कंप्लेंट बेनज़ीर भुट्टो की थी कि जी पेट्रियार्की स्टिल एग्जिस्ट, मेरे अंकल्स मुझे छोड़ नहीं रहे. Of course बात it आपकी सही है. आई मीन वो तो एक बैलेंस व्यू लेना पड़ेगा देखिए, हमें. आप डेमोक्रेसी को डिफाइन ही नहीं कर सकते ना दुनिया के अंदर. डेमोक्रेसी For the people, of the people, by the people. it's a facade. It's you know, अगर डेमोक्रेसी की बात होती तो मेजॉरिटी आर विमेन दुनिया के अंदर. If you are talking about the ratio. आज को तक 51%, you're right. Yeah. ठीक है, तो majority in Pakistan are women. ठीक. नहीं, पूरी दुनिया में. अच्छा, globally. तो फिर ग्लोबली मैं बात कर रही हूँ. ग्लोबल डेमोक्रेसी कैसे कहते हैं? We don't have a single world government. औरतों की वैसे भी मेजॉरिटी ज़्यादा है ना, तो हर कंट्री में इसका मतलब है औरतों की मेजॉरिटी ज़्यादा है. चाइना में नहीं है जी. मगर yes, you're right. Predominantly बहुत से मुल्कों में ख़वातीन 51%, 52% इस तरह की dominance. It's a fact. मर्दों की थोड़ी सी कम होती है रेशो. जी, you're right. तो फिर तो पूरी दुनिया पे औरतों को रूल करना चाहिए था ना. It's like it's a very well made system where women were oppressed and it's been happening historically. ये आज नहीं हुआ. इस्लाम शायद पहला एक रिलीजन था जिसने ख़वातीन को राइट्स दी. ठीक है जी, आपकी बात समझ. ये मुझे बताइए, आपको देख के लोग आपके बारे में क्या चीज़ गलत अज्यूम करते हैं? क्या चीज़ गलत अज्यूम करते हैं? क्या मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ? आप एनसीए से डिस्टिंक्शन मिली हुई है, तो थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई की होगी. Knowledge does not come from books most of the time. It's also your experiences. It's also your something. I would say it comes with your sensitivity. How sensitive you are in with the information you are given. बहुत सारे आपको इस तरह के भी लोग मिलेंगे जिनको आप कुछ बहुत informative बताते हैं and they ignore it. Right. And a sensitive person would be someone who would actually consider it or would consider it in the future as well. Right. So I think knowledge is something that comes from your sensitivity. How sensitive you are to Emotional information. quotient आपका कि आप how sensitive you are to feeling other people's emotions. Yeah, and how curious you are and how much you want to know. Right. आपको knowledge चाहिए तो आजकल मतलब you know it's not like you don't Wikipedia पढ़ा need मैंने, बिल्कुल. to go to places. You don't need books. You don't need you know Right. you don't even need to read in order to have knowledge. Listen, audio books सुनना शुरू कर दो. सही कहा आपने. I mean, knowledge gathering के तो हमारे आजकल बड़े tools आ चुके हैं. So many resources. We have so many resources. So if a person who is ignorant Right. is ignorant by choice. It's easier to be ignorant. Ignorance is a bliss. Ignorance is bliss. आपने सही कहा. ठीक है, बिल्कुल सही. आपको इश्क के बारे में सबसे ज़्यादा किस चीज़, किस किताब या किस बंदे ने सिखाया या बंदी ने? मेरी अम्मी ने. क्या सिखाया? My mother, she is love.
there's no other way to define it. She raised us out of love, and when I see her, I've spent a lot of time with her. I've spent my 20 years with her. I did not travel in that time. I wasn't, I did not have the kind of a social circle where I was away from my mother. I was very close to her. I would sleep next to her. I would go to school with her. ठीक जी और हर रोज़ मैंने उनको सुबह उठ के वो सुबह उठती थी. शी यूज्ड टू शावर, शी यूज्ड टू ऑफर हर प्रेयर, और वो अपनी फिर लाल लिपस्टिक लगाती थी. एंड देन शी वुड गो टू हर जॉब. वो अपना पूरा दिन, मैं उनके साथ स्कूल जा रही हूँ तो वो पूरा दिन स्कूल में गुजारा. फिर देन द स्कूल शी यूज्ड टू वर्क इन, उसकी दीवारें भी नहीं थी, उसकी चार दीवारी नहीं थी, उसके अंदर बाथरूम नहीं थे. With all the problems that my family was facing at that time, she still had the heart to go to government offices कि भाई दीवार बना दें, चार दीवारी कर दें, बाथरूम बना दें मेरे बच्चों के लिए. That was all love. पूरी ज़िंदगी, for she spent 25 years of her life doing her duty. उन्होंने अपना पूरा गवर्नमेंट की जॉब का वो जो टेन्योर होता है, इट्स 25 years, उन्होंने पूरा किया है. She was punctual, she woke up every single day, she had the same routine, dealing that, and then घर के भी काम कर रही हैं, वो हम सब के कपड़े बनाती थी. She used to stitch, and आजकल आप एक काम करते हैं, आप थक जाते हैं, ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप दूसरी एक्टिविटीज़ भी करें. सही कहा जी आपने. दिन में एक काम हो सकता है और बहुत हो गए तो दो काम बस. I grew up in an environment जहाँ मेरी अम्मी चारपाई भी बुन रही हैं, वो हमारे स्वेटर्स भी बना रही हैं क्रोशिया से. She still makes those sweaters for me. Fantastic. And there was so much craft that she was capable of doing. सिलाई भी आती है उनको, कढ़ाई भी आती है उनको, खाने भी वो बना रही हैं, मेवे बना रही हैं वो. And she did all of that for her, for the love of her offsprings. ठीक है, अपने बच्चों के लिए इतनी उन्होंने मोहब्बत में किया ना. Of course. She had a choice. She could have just bailed on us, but she kept doing it for years and years. And she did it without any effort or without any expectation of reward. Without any complaining. She never complained. She never asked for anything in return. And even now, like, when I go to work, when I'm working, हालांकि मैं तो अपने स्टूडियो में से एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाके काम कर रही हूँ, but I still put on a red lipstick. Just like, it's something that gives me a sort of power to, जैसे वो पूरा अपना दिन गुजारती थी, इतने मुश्किल दिन थे, but she did it, and she used to like put on her red lipstick and she used to just go about the day. That's fantastic. Let me ask you a rather troubling question. आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा अकेलापन कब महसूस किया? हमेशा? क्या ये आर्टिस्ट का मसला है कि हमेशा ही अकेला फिरता है? I was the youngest one in my siblings. Right. And for every action, I had an example. ठीक है, कोई साइकिल चला रहा है और वो गिर जाएगा, तो मेरे पास एग्जाम्पल थी कि अच्छा साइकिल चलाऊंगी तो शायद मैं भी गिर जाऊंगी. सो आई नेवर ट्राइड साइकिलिंग. Oh dear God. Okay. ठीक. So it was something that gave me sort of examples for everything to do and what to not to do. Right. And everything like that. Right. So then again, it's like जब आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं ना, तो it's hard to communicate with a kind of a person who also understand all of those things with the same level of sensitivity. Right.
So, in a manner, yes, I have friends, yes, I hang out with people, but then again, with my experiences, it is very difficult for me to be in a company of a person where I do not feel alone, or I do not feel that that person is not capable of understanding all of me. So, in a manner, yes, I do feel alone. Right. But then again, it's not something that I mind. I guess the best moments in life is when you're with someone and you still feel alone. कि आप उनको पकड़ Now I basically, because of that, I understand myself a little more. Right. Now I understand what I like, what I don't like, what kind of a person I am. Right. So in a way, it's also a blessing. I get to be just me and not someone else. आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? Success का मतलब लंदन में आपकी आर्ट गैलरी या आपको घर वाले कहें जी शाबाश बेटा बड़ा कमाल काम किया है या फ्रेंड्स आके कहें यार बड़ी सॉलिड आई मीन व्हाट्स योर मेजर ऑफ सक्सेस? No, it's never been that. I've never been a very social person. I've never. I think I would say that I'm someone who runs away from attention. ठीक. So for me, success has been something that satisfies me. Okay. If I'm working and if I'm not indulged in it enough, so I cannot work. But when I'm working and I'm too indulged in it, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में, that's success for me. I'm living a life where I'm working and I love that work. That's success for me. आप क्या चाहते हैं कि आपके गुजरने के बाद लोग आपको कैसे याद रखें? It doesn't matter. Of course it matters. That's why we make things. I mean हम चीजें मैं बनाते तो हैं. गुजर जाऊंगी तो मुझे कैसे फर्क पड़ेगा? Legacy. Legacy, I think art is something that is immortal. And when an artist does something, so it's, इकबाल को आज तक हम जानते हैं उनकी पोइट्री की वजह से, इजिप्शियंस को हमें पता है उनके पिरामिड्स की वजह से. So it's more like, art is a sort of a thing that makes you immortal. So it's not a concern. If I get to be recognized as an artist, it would be a blessing. So it would be my immortality. मगर आपको लोग कैसे याद रखें? She was a brilliant artist. She was an amazing actress. She was a beautiful human being. क्या आप चाहेंगी कि लोग आपको कैसे याद रखें? As just as me, हुरिया खान के नाम से मुझे वो याद रखें. Me as myself, a human being who existed. That's ठीक. it. आखिरी बात जी, वो कहते हैं कि इश्क क्या शय है किसी कामिल से पूछा चाहिए. मुझे बता दीजिए इश्क क्या शय है? When it comes to love, again, it's something we know through movies. It's something we know through poetry, and it's something that we know of through stories. ठीक है. इश्क का मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि it's your partner और उस पार्टनर के साथ आप ज़िंदगी गुजार दें और आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार दें तो you call it love. It's a blessing if your lover also loves you. Right. But if your lover does not love you back, that does not mean that love in itself does not exist. अब के तजदीद वफा का नहीं कहाँ जाना? I mean, ये how do you explain that? क्या मतलब है आपका इस बात से? So love, it's my choice. Right. It's a feeling. Right. If I'm in love, it's my responsibility. I decided to be in love. I found someone or something Right. that makes me want to love it. It does not mean that there is an obligation that even if it's my work, तो मेरा काम मुझे उतने ही रिवॉर्ड दे जो मैं उसको एफर्ट दे रही हूँ. नहीं.
It does not mean that. Or my lover loves me back. No. ये सब betrayal नहीं होगा? If your lover doesn't love you back, तो वो कहते हैं ऐसे महबूब पे लाम, तो फिर से बात करो, बोलता नहीं। खुदा से भी तो मोहब्बत होती है। हाँ जी, वो खुदा तो apparently बोलता है, वो तो जिंदा। और खुदा भी तो अपने बंदे से मोहब्बत करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। And like there is like you just when you say you love God, you give with the idea कि maybe the act might please the God, it's the love of a human being for their God कि मैं खुदा से मोहब्बत करूं, शायद मेरी ये हरकत खुदा को पसंद आ जाए। मतलब कि हम ये नहीं कहते कि अच्छा हमने मोहब्बत किया भाई खुदा भी अब हमसे मोहब्बत करे, नहीं, we are always in a doubt because love is more about to give. It's something that you ये तो give, आपने it's कह दिया something that you कि feel. इश्क जो है इबादत है, हाँ, it is. तो फिर फना क्या है? I would say कि if a person is in love, that love does not disappear. मोहब्बत ख़त्म नहीं होती कभी। नहीं हो जाती है, मैं बता रहा हूँ, बड़े आराम से खत्म हो जाती है। It's 15-20 मिनट दें, 2-3 ड्रिंक मारे बंदा, सब मोहब्बतें खत्म हो जाती है। कहता है यार वो तो बंदा था ही इतना फजूल के पास, मर क्यों नहीं किया वो भी नजरों में। I would rather say it's like there is a balance, or like the other feeling becomes a priority. वहाँ पे जहाँ पे love turns to hate. hatred priority बन जाती है, or the pain that you have felt Right. becomes the priority. You first want to treat yourself then. नहीं ऐसी That कोई बात नहीं है। replaces it. मैं आपको बता देता हूँ, whenever I'm in love, I'm in खत्म नहीं love. होती। Whenever I'm in love, I'm in love. When I'm not in love, वो एक indifference की feeling आ जाती है। फीलिंग चेंज हो जाती है ना, आप उस इंसान से कभी मोहब्बत करना ख़त्म नहीं कर सकते। इट्स Really? गोइंग टू एग्जिस्ट। आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, आप बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि यू अंडरस्टैंड कि इट्स ठीक। नॉट मॉरल और इट्स नॉट सूटेबल, बट दैट डज नॉट मीन कि यू डू नॉट लव गॉड और यू डू नॉट बिलीव इन गॉड, और खुदा से मोहब्बत नहीं है। देखिए जी, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। मोहब्बत होती है, वो इंसान से हो, खुदा से हो, चीज़ से हो, किसी चीज़ से भी हो सकती है। ठीक है। Any message for the young people of Pakistan, young artists, आप कुछ कहना चाहेंगी उनसे? Art is not just some unnecessary thing. It's not an entertainment. It's how we survive. हाँ। It's how we lived. दुनिया में आर्ट ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इट मीन्स एंडिंग द क्रिएटिविटी, एंडिंग द आइडियाज़, एंडिंग द प्रोग्रेस। और अगर आप एवोल्यूशन पे भी यकीन करते हैं ना, तो आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व करना होता है, आपको आइडियाज़ आते रहेंगे, एंड दे आर ऑल आर्टिस्ट। इट्स नॉट जस्ट अ पेंटिंग ऑन द वॉल, इट्स all your literature, it's your singers, it's your dancers, people who try to understand something जी। and they express it, which helps people. लोग एक कॉन्सर्ट पे गैदर होते हैं। आर्ट इज समथिंग दैट कैन स्पीक टू मैसेस। यानी कि आर्ट तपस्या मांगता है। क्या वो कहते हैं जी कि इश्क खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। सो बेसिकली बच्चों को कह रही कि आर्ट से दूर रहें बिकॉज बहुत मुश्किल काम है। हर चीज़ मुश्किल होती है दुनिया में, हर प्रोफेशन मुश्किल है। आर्ट के ज़्यादा मुश्किल काम नहीं बाकी प्रोफेशन से। नहीं, आप कुछ भी किसी भी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो वो आसान हो जाती है। आपको आर्ट से मोहब्बत होगी तो वो आपको सबसे आसान चीज़ लगेगी, और आसानी के साथ मुश्किलें भी आती हैं। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। सो बेसिकली लव योर वर्क। I absolutely love it. Thank you so much. You've been very kind. Thank you so much. Thank you for having me over. All right. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.